ظاہر نے اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے موبائل نکالتے اس کو کال لگائی۔ السلام علیکم۔ اس کے پیچھے کافی شور تھا، یقیناً وہ باہر تھا کہیں۔ وعلیکم السلام۔ ظاہر نے صرف سلام کا جواب دیا۔ دلشیر 1 منٹ سے پہلے الرٹ ہوا تھا۔ مبارکباد کے لیے فون کیا تھا میں نے، گھر آ کر پتہ چلا ایک رات میں بہت کچھ ہو گیا۔ لہجہ بھرپور ملامت کرتا ہوا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، وہ جھلا کر بولا تھا۔ یہ بکواس جملہ تو صرف زریز کے سامنے بولا کر، ہر بات کے جواب میں تیری ایک ہی رٹ ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ زریز ٹھیک کہتا ہے، کل کو جب بچے ہو جائیں گے نا اور ہم مبارکباد دینے آئیں گے تو منہ میٹھا کروانے کی بجائے یہی کہنا ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ غصے سے تپا ہوا تھا، اسی لیے ان دونوں کی موجودگی کو بھی بھول بیٹھا، جبکہ اس کی بات پر ہانیہ کی بھیجی ہوئی ہتھیلیوں میں نمی اتر آئی۔ یار بھائی میری بھی تو سن لے۔ وہ باہر تھا، اس وجہ سے کچھ اونچی آواز میں بات کر رہا تھا جو ظائشہ اور ہانیہ تک بھی کچھ حد تک پہنچ رہی تھی۔ تیری تو میں بہت تفصیل سے سنوں گا، ہاتھ لگ تو بس میرے۔ ابھی فون اس لیے کیا ہے کہ جس کو بند کر کے گئے ہو نا، اس کو کھانے پینے کی اجازت ہے یا پھر اس پر بھی پابندی ہے؟ وہ چاہ کر بھی لہجہ نارمل نہیں کر پا رہا تھا۔ اتنی ہی تو وہ میری پابند ہے نا جیسے، اس کا جواباً وہی جلا کٹا جواب، جس پر ہانیہ کی آنکھوں میں پہلی بار نمی اتری کہ وہ بنا اس کی سنے اس سے اتنا بدگمان ہو گیا تھا۔ کہاں گیا وہ نرم اور دھیمے سے مزاج کا بندہ جو اس کی انکہی باتیں بھی جان لیا کرتا تھا؟ ظاہر ان کی موجودگی کا خیال کرتے باہر نکل گیا۔ اتنی یا اتنی پابند کا تو مجھے نہیں پتا، مگر وہ کسی کے کہنے پر بھی قدم باہر رکھنے کو تیار نہیں۔ کمرے سے ذلیل انسان ایسا کیا کہہ کر گیا تو اس سے کہ وہ کانفیڈنٹ سی لڑکی اس بری طرح سے ڈری سہمی ہوئی ہے؟ کچھ نہیں کہا میں نے، حالانکہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر پتہ نہیں کیوں کہہ نہیں پایا۔ اگرچہ اس نے مجھے پہلے ہی موقع پر بری طرح مایوس کیا ہے۔ توقعات رکھنا بری بات نہیں ہے دلشیر، اور اپنے ہمسفر سے رکھنا تو بالکل بھی کوئی انوکھی بات نہیں، مگر تم یہ بھی تو دیکھو کہ راتوں رات وہ بدل نہیں سکتی میرے یار، آرام سے بھی تو بات ہو سکتی ہے۔ میں نے اس سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی تھی بھائی، بس ایک ہی بات کہی تھی جو میں نے اس سے بہت واضح انداز میں کلیئر کی تھی کہ یہ سب مجھے منظور نہیں، اور نہ میں اس کی کسی قیمت پر اجازت دوں گا اسے۔ لیکن اس نے اجازت لینا بھی ضروری نہیں سمجھا اور چل دی اپنی مرضی سے۔ جب وہ یہ سب نہیں چھوڑ سکتی تھی تو میں نے کون سا اس سے گن پوائنٹ پر نکاح پڑھوایا تھا؟ اس سے پوچھ کر، اس کو سب بتا کر اس کا ہاتھ تھاما تھا، مگر اس نے مجھے منہ کے بل گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ یقین کریں، میں اس وقت مر جانا چاہتا تھا یا مار دینا چاہتا تھا کہ میں اپنے عملے کے ساتھ وہاں پہنچا تو سب سے پہلے میری ہی بیوی وہاں اپنے آوارہ اور نشئی دوستوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ واہ کیا سین تھا بھائی، میرا تو سر فخر سے بلند ہو گیا اس پل اپنی بیوی کو اتنی معزز جگہ پر دیکھ کر۔ چلو پہلی غلطی ہے، نظر انداز کر دو یار، پیار سے سمجھاؤ گے تو سمجھ جائے گی۔ سمجھنا تو اس کو پڑے گا بھائی، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ میں ایسے تماشے مزید افورڈ نہیں کر سکتا۔ ابھی تو بچت ہو گئی کہ میں نے کسی کی نظر پڑنے سے پہلے ہی سب کو ادھر ادھر بھگا دیا اور خود منہ چھپا کر اپنی نام نہاد بیوی کو لے کر نکل آیا۔ اگر میرے سٹاف میں سے کوئی دیکھ لیتا تو میں کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہتا۔ چل چھوڑ دے غصہ میری جان، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اس کو مزید مت ستانا، میں ابھی وہیں سے آیا ہوں۔ اب اگر بادشاہ سلامت اجازت دیں تو ان کی ملکہ کو کمرے سے باہر تو نکال سکتے ہیں، یا آپ جناب تعمر اس کو اپنی خوابگاہ تک ہی محدود رکھیں گے؟ طنز کرنا تو کوئی آپ سے سیکھے، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ جو چاہیں کریں، مگر اس کو اپنی زبانی سمجھا دیں کہ میرے ساتھ رہنا ہے تو انسانوں کی طرح رہے، نہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں نے کہا تو پھر سب کو اعتراض ہوگا کہ میں نے ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے ہیں اس پر۔ السلام علیکم۔ رات گئے وہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ ابھی بھی جاگ رہی تھی، صوفے پر بیٹھی کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف نظر آئی تھی اسے وہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ چھوڑتے اٹھ کھڑی ہوئی اور دوپٹہ ٹھیک کرتی اس کے لیے پانی کا گلاس لانے لگی۔ ہنوز نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ مومن کے لب آپ ہی آپ مسکرانے لگے۔ میں بہت خوش ہوں آج، بہت زیادہ خوش۔ اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس تھامتے اس نے اپنی خوشی اس کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ کرے آپ ہمیشہ خوش رہیں، مگر کیا میں اس کا پس منظر جان سکتی ہوں اس خوشی کا؟ خالی گلاس پکڑتے اس نے سرسری سا پوچھا اور پلٹ کر گلاس واپس ٹیبل پر رکھا۔ بالکل پوچھ سکتی ہیں، بلکہ میں آپ کے پوچھے بنا ہی سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہی شیئر کر رہا ہوں۔ آپ کہیں میں سن رہی ہوں۔ وہ ساتھ ساتھ اپنے معمول کے کام بھی سر انجام دے رہی تھی۔ اس نے اس کا کوٹ اٹھا کر ہینگ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھانے چاہے جب مومن نے یکدم اس کی کلائی تھام لی۔ ایک پل کو وہ سرتا پیر جھنجھنا اٹھی کہ ابھی تک ان کے درمیان آنے والی پچھلی غربت ہی میرال کو اس کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھانے دیتی تھی۔ ادھر بیٹھیں، آپ کو کچھ بتانا ہے۔ وہ اس کو اپنے قریب بٹھا گیا۔
आज जब मैं ऑफिस में था तो ईशल का फ़ोन आया मुझे। उसने छोटा सा वक्फा लिया, फिर मीराल जल्दी से गोया हुई, जैसे उसको उनके दरमियान उसका रुकना अच्छा नहीं लगा। वो औरत शेर से डिवोर्स नहीं लेना चाहती, मतलब वो उसके साथ रहना चाहती है। ये तो वाकई बहुत अच्छी बात है। मैंने उसका कुछ हद तक झुकाव महसूस किया है औरत भाई की तरफ, औरत शेर भाई की तरफ। मगर भाई क्या क्या वो मान जाएंगे? माना हुआ ही समझे, बस उसे सता रहा है, साथ हमें अभी परेशान किया बदतमीज़ इंसान ने। थैंक गॉड उनके दरमियान मामला सेट तो हुए। मैं वाकई दोनों के लिए दिल से खुश हूँ। आप यकीन करें, मैं भी आज बहुत अरसे बाद इतना खुश और पुरसकून और हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ खुद को। वरना तो जब से हम दोनों का निकाह और उनके इख्तलाफात शुरू हुए थे ना, हर वक्त एक बेचैनी सी रहती थी दिल को। मगर आज बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ये अहद भी था खुद से कि जब तक वो दोनों अपनी ज़िंदगी में सेट नहीं हो जाते, मैं अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ूंगा। मगर आज मैं खुद आज़ाद पंछी की तरह खुद को महसूस कर रहा हूँ। उसकी आखिरी बात पर मिराल को जाने क्यों एहसास हुआ कि वो कहीं उसकी राह में रुकावट तो नहीं थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात पर उसको महसूस हुआ कि हो सकता है इस जानिब इशारा कर रहा हो कि अब वो अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहता हो। और इस आर्जी मांगी जाने वाली पनाह का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मैं जल्द कोशिश करूंगी कि वापस जा सकूं। अपने दिल की दुआइयों को नज़रअंदाज करती वो अपना भरम रखने की कोशिश करती। इतना कहकर उसका कोट उठाते बोझल कदमों से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गए। मोमिन उलझ कर रह गया था उसकी इस बात पर उसको आज नए सिरे से याद आया कि उसने मोमिन शाह से आर्जी तौर पर एक पनाह का मांगी थी। दिमाग ने उसको याद दिलाया, जब वो अजनबी से आर्जी पनाह का सवाल कर सकती है तो मेरे साथ रहते उसको इतना सा भी एहसास नहीं हो सका कि जो उसको वक्ती पनाह दे सकता है वो उसको हमेशा के लिए भी तो पनाह दे सकता है। दिल ने अपनी तोजही पेश की। उसने बारहा उसकी आंखों में अपना अक्स देखा था, मगर उसके अल्फाज मोमिन शाह को बुरी तरह डिस्टर्ब कर गए थे। मिराल, आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वो ड्रेसिंग रूम से वापस आई तो मोमिन ने उसको निगाहों में रखते फैसला कुन अंदाज में बात करने का इरादा किया। जी ज़रूर। वो उंगलियां मरोड़ते ज़मीन पर गाड़े हुए नज़र खड़ी थी। कुछ पर्सनल सा सवाल है, अगर इजाज़त दो तो। जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी पर्सनल है। आपकी कोई कमिटमेंट है किसी के साथ? मेरा मतलब, क्या वहाँ कोई मुंतज़िर है? अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने बिलाखिर पूछ ही लिया कि आखिर वो वापस क्यों जाना चाहती है। दूसरी तरफ उसके सवाल पर मिराल ने जिन नज़रों से उसे देखा वो मोमिन शाह के वजूद में शगाफ डाल गई थी। बिना कुछ कहे, बस एक नज़र देखकर खामोशी से अलमारी के पट खोले उसके लिए कपड़े निकालने लगी। जब मेरे अलावा कोई नहीं है तो फिर जाने की बात क्यों करती हो? जब अंदर बाहर हर तरफ मोमिन शाह है तो मुझसे भागती क्यों हो? कदम कदम चलते वो उसके पीछे आन खड़ा हुआ और फिर अगले ही पल वो उसके हिसार में कैद थी। उसकी नज़दीकी, फिर इस कदर वाज़े सवाल, इस हद तक ठीक अंदाजे पर वो मर जाने को थी कि वो जान चुका था कि मिराल तस्खीर हो चुकी है, मोमिन शाह की हो चुकी है। उसके हाथ से मोमिन के कपड़े फिसल कर कदमों में जा पड़े। उसकी पुश्त जैसे जल रही थी। बोलो ना मिराल, फिर क्यों दूरियों को दरमियान में लाना चाहती हो कि अभी तो गुर्बतों के मौसम आए, अभी तो रुत बदली है, तो क्यों दूर जाना चाहती हो? क्यों खुद को आजमाइश में डालना चाहती हो? वो उसके सवालों के जवाब में चाह कर भी ये नहीं कह पाई कि मुझे तो अपनी बना चुके हो, मेरा दिल तो फतह कर चुके हो, मगर तुम अपनी भी तो बताओ मोमिन शाह कि मिराल तुम्हारी ज़िंदगी में कहाँ है? मैं किसके लिए रुक जाऊं? सिर्फ इसलिए रुक जाऊं कि मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती, जबकि मैं ये तक नहीं जानती कि तुम्हारे दिल में क्या है। क्या तुम मुझे अपने पास रखना चाहते हो? वो उसकी बाहों में पिघल रही थी मगर अपना भरम नहीं टूटने देना चाहती थी, इसलिए लब सिए खड़ी थी। अगर मैं कहूँ कि मत जाओ मिराल, तो क्या तुम रुक जाओगी? वो हर बार की तरह इस बार भी बिना कहे जान चुका था। वो इस बार काबू नहीं रख पाई खुद पर। आंसू लड़ियों की मानित गालों पर लुढ़क आए। मेरे लिए रुक जाओ, सिर्फ मेरे लिए। मोमिन ने एक जज्ब से कहते चेहरा उन स्याह घटाओं में छुपाया। मिराल के रोने में मजीद रवानी आ गई। उसको लग रहा था जैसे बरसों से लहरों की जद पर रहने वाली नाव को किनारा मिल गया था। आज मिराल को पाँव टिकाने के लिए ज़मीन मिल गई। मोमिन ने झटके से उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा तो वो उसके सीने पर सर टिकाए बस रोए जा रही थी। अब मैं मजीद नहीं सह सकता मिराल, मेरे पास खोने को अब कुछ भी नहीं। मोमिन शाह जी नहीं पाएगा तुम्हारे बिना। अगर तुम दूर हुई तो बहुत जल्द मर जाएगा मोमिन शाह। साल हा साल का थका हुआ हूँ, अब तुम तो छोड़कर मत जाओ। उसको खुद में समेटे उसका खुद अपना लहजा भी भीगा हुआ सा था। उसके ये इकरार, ये इजहार मिराल को पागल कर रहे थे कि वो तो जाने कब मोमिन शाह पर दिल हार बैठी थी। वो तो बस इस बात की तमन्ना ही थी कि वो उसे अपने पास रहने दे, भले सारी
उम्र वो उसकी मुलाजमा बनकर रहे, मगर उसकी आंखों को मोमिन शाह का चेहरा नज़र आता रहे, लेकिन वो भी उसको चाहने लगा है। ये एहसास हर एहसास से खूबसूरत था कि जिसकी वो शैदाई है वो भी उसका असीर हो चुका है। उसकी बाहों के घेरे में उसकी सरगोशियाँ सुनते, मुट्ठियों में उसकी शर्ट भींचे वो अपनी कैफियत बयान नहीं कर सकती थी। मीराल का दिल, मीराल की जान, मीराल की हर सांस कुर्बान मोमिन शाह पर। उसकी धड़कनों में सब बस यही सदाएं गूंज रही थीं उस वक्त। कितनी ही देर वो दोनों वहीं वैसे ही खड़े रहे। खामोशी का पहरा हर सू था, मगर धड़कनें एक दूसरे से हम कलाम थी। काश मैं बता सकूं मोमिन शाह मेरे लिए क्या है। ये नाम मेरी सांसों से होते हुए मेरी रगों तक सिरायत कर चुका है। बहुत खामोशी से तुमने मेरे दिल को फतह कर लिया, और मैं पैरों हैरान सी बैठी तुम्हें दूर से देखती रही कि ये तुमने क्या किया मोमिन शाह। मेरी जान किन अजाबों में घिरी रही कि ये जो आर्जी सा हम सफ़र है क्यों मेरा राह रोक रहा है। कुछ कहता नहीं, मगर फिर भी मेरे अंदर हर सू डेरा जमाए हुए। अगर मीराल तुमसे दूर होती तो यकीनन उसकी रूह भी उसके वजूद का साथ छोड़ जाती मोमिन शाह। मीराल भी मर जाती। तुमने मुझे बचा लिया मोमिन शाह। मेरे वजूद को अपने वजूद की घनी छाँव से ढांप लिया है तुमने। आह, मैं क्या हूँ कि मोमिन शाह कौन है। मैं कैसे कहूँ कि मोमिन शाह कैसा है। मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे मोमिन शाह समंदर जैसा लगता है। मुझे मोमिन शाह ज़िंदगी जैसा लगता है, सांसों जितना ज़रूरी, धड़कनों के लिए लाजिम व मलजूम लगता है। लब सिले हुए थे, मगर उसका रुआं रुआं मोमिन शाह की धड़कनों से महवे गुफ्तगू था। अगर कभी मुझे ज़रूरी लगा तो मैं तुम्हें अपने माजी के बारे में बताऊंगा मीराल, मगर अभी मैं उसकी ज़रूरत महसूस नहीं करता कि अभी के लिए हम दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। ये जो सिलसिले हमारे दरमियान बहुत खामोशी से बन गए हैं, उनके होते हुए और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं कि ये एहसास आज हर एहसास से बढ़कर, ये नज़दीकियाँ लाजवाल हैं। एक लहर पर धड़कती हुई हमारी धड़कनें आज किसी माजी मुस्तकबिल की मोहताज नहीं है। आज की सच्चाई ये है कि मोमिन शाह दिलो जान से तुम्हारा है। एक ज़रा बराबर भी किसी की मेरे वजूद में शिराकत दारी नहीं। मैं जो हूँ जैसा हूँ सिर्फ तुम्हारा हूँ, बस तुम्हारा हूँ मीराल मोमिन शाह। वो भी होंठ भींचे हुए उसको खुद से लगाए खामोशी से इकरार के मरहले तय कर रहा था। जाने कितना वक्त उन्हें यूं ही एक दूसरे में गुम हुए गुजरा कि वक्त और जगह का एहसास उन दोनों को ही नहीं था। वो दोनों ही खोए हुए थे। मोहब्बत उन्हें अपने सर में जकड़े हुए थी और वो दोनों दामन छुड़ाना भी नहीं चाहते थे। वो उसको अपने हिसार में लिए खड़ा था, और जाने किस पल शिद्दत जज्बात में आकर उसने अपनी गिरफ्त मजबूत की कि मीराल जैसे नींद से जागी। अपनी पोजीशन और बेख्तियारी का एहसास हुआ तो बारे हया से वो कट कर रह गए। मोमिन, उसने हल्का सा कसमसा कर उसको मुतवज्जो करने को पुकारा। उसने वैसे ही उसे मध्यम सा हंकारा भरा। चेंज कर लें आपके कपड़े, वो आपके कपड़े अभी रहने दें, मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। फ़िलहाल मेरे दिल के तकाज़े कुछ और हैं। लहू की मानिंद आपकी तलब रगों में गर्दिश कर रही है। शौक़ है कि हर पल आन कुव्वत पकड़ता जा रहा है। ख्वाहिशें वजूद को ऑक्टोपस की मानिंद जकड़ रही हैं। वो बोल रहा था और खुमार की ज़्यादती के बायस मज़ीद बोझल होकर सरगोशी में उसकी बात ढल गई। मीराल के अंदर पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी थी। सरता पैर कप कपा कर रह गई। वो जो हमेशा अब तक फासले पर रहा, उसके तेवर बता रहे थे कि अब वो माइल नहीं। कुछ मांग लूँ आपसे क्या। कितने जतन के बाद वो बमुश्किल बोल पाई, जबकि इस सवाल का जवाब वो जानती थी, मगर वो खामोश था तो उसको सवाल करना पड़ा। कुछ बहुत कीमती, बहुत खास। इस बार उसने कोई सवाल नहीं किया। क्या पूछती कि रत्ती बराबर भी हिम्मत नहीं बची थी। जिस्म जैसे बेजान होने को था और रूह फना होने को थी। रात काफ़ी ज़्यादा गुजर चुकी थी जब वो हवेली वापस आया और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हालांकि सर में इतना शदीद दर्द था कि कॉफ़ी या चाय की शदीद तलब थी, मगर वो पहले फ्रेश होना चाहता था। कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा नीम तारीक था, जबकि जिस वक्त वो गाड़ी गेट से अंदर लाया था बालाई मंजिल पर मौजूद उसके कमरे की लाइट ऑन थी, जिसका मतलब था कि मोहतरमा जाग रही थी। लेकिन उसके कमरे में दाखिल होने से पहले वो लाइट्स ऑफ करते सर तक लिहाफ ताने लेटी हुई थी। उसको बाद में देखने का सोचते वो आगे बढ़कर कपड़े लेता वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। शावर लेकर तबीयत पर छाई कनूती और चिड़चिड़ापन काफ़ी हद तक दूर हो चुका था। बाल बनाते वो आईने से पीछे बेड की तरफ ही देख रहा था। मुट्ठियों में भिंचा हुआ कंबल उसके जागने की तस्दीक कर रहा था। जाहिर से होने वाली गुफ्तगू याद आई तो उसको याद आया कि अगर वो उसके जाने के बाद कमरे से नहीं निकली तो पता नहीं कुछ खाया भी होगा कि नहीं, या हो सकता है मामा लोगों में से किसी ने खिला ही दिया। वो ब्रश वापस टेबल पर रखते उसकी तरफ आया। हनिया हटाओ ये चेहरे से। उसके करीब खड़े होते उसने उसको लिहाफ हटाने का ऑर्डर लगाया, मगर जवाब निदार्द। मुझे पता है तुम जाग रही हो, इसलिए हटाओ या मैं खुद साइड पर करूँ इसे।
वो अब उसके करीब बैठा बेड पर जगह बना चुका था। उसके पास आकर बैठ जाने पर वो बिदक कर उठ बैठी। क्या मसला है अब आपके साथ? हर बात में आपकी डिक्टेटरशिप चलेगी क्या? कोई सोए कोई जागे, ये उसका पर्सनल मसला है। वो नाराज़गी भरे लहजे में बोली। उसकी तरफ देखने से उसने मुकम्मल परहेज़ किया था। मियाँ बीवी के पर्सनल्स भी होते हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया ये अब तक। वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और यही चीज़ उसका बीपी हाई कर रही थी। नफ़रत है मुझे मर्दों से, सब के सब एक जैसे होते हैं। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें भीग चुकी थी। उसने फ़ौरन से पेशतर अपने आंसुओं को साफ किया। तो करती रहो नफ़रत मर्दों से, मुझे कोई मसला नहीं। उसने लापरवाही से कंधे उचकाए, जबकि वो उसकी बात पर उसको यूं देख रही थी जैसे उसकी ज़हनी हालत पर शुबा। वो मर्दों से नफ़रत का कह रही थी, जिसका मतलब था कि सब मर्द, और इस बात का पस मंज़र ख़ास कर दिलशेर था। हैरान क्यों हो रही हो? मुझे तो तुम पहली मुलाकात पर ही नामर्द डिक्लेयर कर चुकी हो, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं तुम्हारी मर्दों से नफ़रत पर। उसने चुप होने में याफियत जानी, सो रुख मोड़े बैठी रही। कि अब तुम मुझे मर्द मानने लगी हो, जबकि मर्दानगी का किसी किस्म का ख़ास मुजाहरा मैंने दिखाया भी नहीं। वो उस पर संजीदा नहीं था। इन ऊटपटांग बातों का मकसद उसको तैश दिलाना था। जब मेरे इंतज़ार में अब तक जागी हुई थी तो कोई बात ही कर लो, अब तो मैं आ गया हूँ। नहीं करनी मुझे आपसे कोई भी बात। तो फिर सोई क्यों नहीं? वो उसके जागने की वजह जानने पर मुसिर था, या जाने बिला वजह क्यों तंग कर रहा था। अब सो जाती हूँ अगर इतना ही मसला है तो। वो चिढ़ गई थी उसके ख्वामखा के फ्री होने पर। जागने से वाकई कोई मसला हो सकता है? मेरे ख्याल में सो जाना ही बेहतर है, तुम्हारा भी और मेरा भी। उसने मुस्कुराहट दबाते नज़रों का जाविया बदलते हुए कहा। उसको एक पल लगा था जानने में कि किस हालत में उसके इतना करीब बैठी है, वो भी तब जब उनके दरमियान हकूक़ व फ़राइज़ पर मबनी बहुत मजबूत रिश्ता बन चुका है। ताड़ू इंसान। वो लिहाफ सीने तक ओढ़ते बुड़बुड़ाई। उसके लिए एक नया अंदाज था दिलशेर एहान का, जो उसने अभी अभी महसूस किया था। वो शायद उसका दिया गया लक़ब सुन चुका था, तभी अपना कहकहा रोक नहीं पाया। माय गॉड, अपने शोहर को इस किस्म के अलकाबात हानिया दिलशेर ही दे सकती है। वो मुसलसल हंस रहा था। पहले लोफर और अब ताड़ू। क्या बात है दिलशेर एहान की, क्या चुनकर बीवी मुंतखब की है मैंने अपने लिए। तुम्हारा वाकई जवाब नहीं दिलशेर एहान। उसको अब गुस्सा आ रहा था उसके हंसने पर। जब ही पास पड़ा तकिया उठाकर उसको दे मारा। उसका खून जलाकर कहकहे लगा लगा कर। अच्छा अब नहीं हंसता, बताओ खाना खाया? वो शराफत के जामे में वापस आया। नहीं, आपने नाश्ता इतना ज़्यादा अच्छा करवाया था कि गुंजाइश ही नहीं बची किसी चीज़ की। वो खा जाने वाली नज़रों से उसको घूरते हुए चबा चबा कर बोली। अच्छा मैं लेकर आता हूँ, फिर करता हूँ बात आकर। ज़रूरत नहीं, न खाने की न बातों की। और वैसे भी अब बातों का वक्त नहीं है। हानिया, मैंने कहा ना आ रहा हूँ तो फिर करते हैं बात। वो अब की बार बिल्कुल संजीदा था। हानिया ने मज़ीद ज़िद करना बेहतर नहीं समझा। वो उठकर बाहर चला गया। करीब कोई 15 मिनट बाद वो ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुआ। क्या दिन आ गए हैं, ये वक्त भी आने थे दिलशेर एहान पर कि सारे दिन की ख्वारी के बाद बजाय इसके कि उसकी बीवी किसी किस्म की कोई खातिर मिदारत करे, उसकी खिदमत करे, उल्टा हमको ट्रे सजा कर लाए हैं महारानी साहिबा के लिए। वो उस गलती के लिए इतनी जल्दी उसको छोड़ने वाला तो नहीं था, मगर उसको कुछ हद तक अंदाज़ा हो चुका था कि वो अगर अपने फ्रेंड से मिली थी तो यकीनन अपने फादर के बारे में भी जान चुकी होगी। यही वजह थी कि दिलशेर ने अपने गुस्से को साइड पर कर दिया था। फिलहाल आप इतना सब करके कैसे लापरवाह कि जैसे गुजरी रात की कोई हकीकत ही नहीं। वो चटक गई थी।